Assalamu alaikum, my dear students. In my previous video, we talked about three kinds of tenses: present tense, past tense, and future tense. And these basic tenses are further divided into four forms, that is, indefinite tense, continuous tense, perfect tense, and perfect continuous tense. So, in today's video, we are going to start with the first kind of present tense, that is, present indefinite tense. This tense is also known as simple present tense. The present tense simple in English is used to describe an action that is regular, true or normal. तो इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल कुछ हम इस तरह से करते हैं कि अपने कोई भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बताना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम अपनी आदतें, अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेजेंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज़ को बयान करने के लिए भी इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यूँ देखा जाए तो इस टेंस का इस्तेमाल जो है वो हम सिंपल वे में अपनी कोई भी हैबिट्स हों, लाइक्स हों, डिसलाइक्स हो, पसंद नापसंद, फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज़, कोई भी अपनी हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। Now before we start sentences, let's see how can we understand it. So we can understand it in three ways. Sentences means positive sentences, then negative sentences, and questions. Now before we start sentences, let's see subject in simple present tense. There are three parts of a subject, which we have divided into two types, that is singular and plural. Let's use the first part of a subject, that is first person. In singular it is I, यानी कि मैं, कोई भी काम करने वाला, and in plural forms it is we, हम, काम करने वाले, बात करने वाले, कुछ भी बताने वाले। जब वो प्लूरल फॉर्म में होंगे तो we. Then comes second person. In singular form it is you, and in plural form it is also you. But in singular it is used for one person, but in plural it is used for more than one person. Let's see the third person. The person whom we are talking about is known as third person. यानी जिस शख्स के बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है. In singular form, third person is he, she, it or Sam. Means any name. कोई भी नाम हो सकता है. Sam की जगह कोई और नाम भी हो सकता है. While in plural form, third person is they. They ज़्यादा बंदों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए जिनके बारे में हम बात करते हैं. Now we will see the formula of simple present tense. Its formula is subject plus verb and plus object. हमने सब्जेक्ट के बारे में अभी जाना कि हमारे पास 8 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि ये हैं I, you, we, they, he, she, it, Sam, means any name, any type of action, word is verb, and anything else that is present in the sentence is its object. Here, for example, action word is go. We have to remember one thing, that is, whenever there is a third person singular, he, she, it or any name, in that case we will use s or es at the end of the verb. मतलब ये कि जब कभी भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, यानी कि कोई ही एक लड़का, शी कोई एक लड़की, इट कोई भी एक चीज़, या फिर किसी का भी नाम हुआ सिंगुलर फॉर्म में, तो इस सूरत में जो भी वर्ब होगा उसके साथ हमने एस या ई एस लगाना है उस वर्ब के अकॉर्डिंग. कुछ वर्ब्स एस लेते हैं, कुछ ई एस लेते हैं, ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम. ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा रहता है, सिर्फ जो है वो वर्ब चेंज होता है. ये याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पैटर्न में ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रहता है, सब्जेक्ट जो है वो आपको देखना पड़ता है, सिंगुलर हुआ तो एस वर्ब के साथ लगेगा, अदरवाइज एस या ई एस प्रेजेंट टेंस में प्लूरल्स के साथ नहीं लगेगा, या आई, वी, यू और दे के साथ एस या ई एस नहीं लगता. सिर्फ ही, शी, इट या कोई भी नाम होता है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा वर्ब के अकॉर्डिंग होता है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि आई गो टू स्कूल, यू go to school, we go to school, they go to school,
he goes to school, she goes to school, it goes to school and Sam goes to school। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं he, she, it और Sam के साथ es का इजाफा हुआ है go के साथ, जबकि ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो s या es का इजाफा नहीं होता। Let's see another example. Here, I play football, you play football, we play football, they play football, he plays football, she plays football, it plays football, she plays football, it plays football, Sam plays football। यहाँ पे आप देख सकते हैं he, she, it एंड सैम के साथ जितने भी प्ले आए हैं उनके साथ एस का इजाफा हुआ। अब यहाँ पे देखें उसमें गो था तो ई एस लगा है, यहाँ पे प्ले है तो एस लगा है, तो ये इसमें जो है ना वो वर्ब के अकॉर्डिंग जो है वो एस या ई एस का इजाफा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट, it goes to market and Sam goes to market। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं he के साथ she, it और Sam के साथ go के साथ es का इजाफा हुआ है। Let's see negative sentences in simple present tense or in definite tense। In simple present tense, we have the same structure of subject, verb and object. But we can see here that we have used do not and don't, does not और doesn't। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने चूंकि नेगेटिव का वर्ड यूज़ किया कि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जब भी प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो इसके अंदर डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल रूल्स में शामिल है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन वही बात याद रखनी है आपने कि आई, यू, वी और दे के साथ आप डू का इजाफा करेंगे नेगेटिव बनाते हुए, जबकि ही, शी, इट और सैम मीन्स किसी भी नाम, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, इनके लिए आपने डज का इजाफा करना है, डज का इस्तेमाल करना है नेगेटिव बनाने के लिए, जबकि आई, यू, वी और दे के लिए डू का इस्तेमाल करना है, तो डू नॉट हो जाएगा। पहली एग्जाम्पल देखें, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती या मैं स्कूल नहीं जाता। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे डोंट लिखा हुआ, तो ये जो डोंट है ये डू नॉट ही है, सिर्फ ये इसकी कंट्रैक्शन में यूज़ करके शॉर्ट फॉर्म में इसको डोंट लिखा गया है। बात वही है, डू नॉट ही होता है जिसको हम शॉर्ट वे में डोंट पढ़ते हैं या डोंट बोलते हैं। अब देखें नीचे ही, शी, इट, सैम, इनको इस्तेमाल करते हैं कि कैसे ये सेंटेंस बनेगा कि ही डजंट गो टू स्कूल, शी डज नॉट और डजंट गो टू स्कूल, इट डज नॉट और डजंट गो टू स्कूल, सैम डज नॉट और डजंट गो टू स्कूल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई, यू, वी एंड दे के साथ डू नॉट का इस्तेमाल हुआ, जबकि ही, शी, इट एंड सैम के लिए डज नॉट का इस्तेमाल हुआ है। Now let's see some other examples of simple sentence means positive sentence and negative sentence. First example is I play football. In negative it will be I do not play football. Second example is you play football and in negative you do not play football. यानी कि आप फुटबॉल खेलते हैं और नेगेटिव में हो जाएगा आप फुटबॉल नहीं खेलते हैं। We play football, we do not play football. They play football, they do not play football. He plays football, he does not play football. कि यहाँ पर he plays football है, जब play के साथ s का इजाफा हुआ है तो इसके नेगेटिव बनाते हुए भी हमने does यूज जब किया तो play का s यहाँ पे हट गया। अब आप देख सकते हैं कि play के साथ s नहीं है तो वो s किस में गया, डज की सूरत में वो इसमें शामिल हो गए और प्ले से ये हट जाएगा। तो यानी जब भी आप डज यूज़ करते हैं तो फिर प्ले के साथ आप एस नहीं लगाते,
या ईएस किसी भी वर्ब के साथ ऐसे ईएस नहीं लगता अगर उसमें डज का इस्तेमाल हुआ है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं चूंकि डज का इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए आपने प्ले के साथ एस का इजाफा नहीं करना। सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस में तो ये होगा ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। तो इस सूरत में एस का इजाफा, क्योंकि ही, शी, इट एंड सैम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, इसलिए इनके साथ डज का यूज हुआ है। अब आप देखें, शी प्लेज फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। इट प्लेज फुटबॉल, इट डज नॉट प्ले फुटबॉल। सैम प्लेज फुटबॉल, सैम डज नॉट प्ले फुटबॉल। लेट्स सी सम क्वेश्चंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। कि क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे होते हैं जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है, तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने क्वेश्चंस बनाने होते हैं जिस भी टेंस के, तो आपने देखना होता है कि उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर टाइम डिफाइन नहीं है, ये हैबिट्स को, रूटीन, डेली रूटीन को शो करता है, इसलिए इसमें ता है, ती है, ते है का एडिशन होता है, एंड में उर्दू में पहचान होती है, और इंग्लिश में क्या होता है, उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो जब ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो इस सूरत में डू और डज इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये आपने याद रखना है। नेगेटिव के अंदर वो हेल्पिंग वर्ब्स तो नॉट के साथ मिला के इस्तेमाल किए, जबकि क्वेश्चन बनाते हैं वही हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो उस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से पहले आ जाएंगे। यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे तो वो आपका जो है वो सेंटेंस क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। जैसे पहला देखते हैं यहाँ पे, आई प्ले फुटबॉल। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका अगर क्वेश्चन बनाएं तो हम चूँकि हम देख चुके हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि आई, यू, वी और दे के साथ डू हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ही, शी, इट और किसी भी नाम का हेल्पिंग वर्ब डज है। तो यहाँ पे हमने जब क्वेश्चन बनाए तो उनके हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे आई का हेल्पिंग वर्ब डू होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हमने उस डू को स्टार्टिंग में लगा दिया। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो डू यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लगा दिया। डू आई प्ले फुटबॉल, एंड इंटेरोगेशन मार्क, तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है, क्वेश्चन मार्क है, वो एंड में आ गया। सेकंड एग्जांपल है, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, देन द क्वेश्चन विल बी डू यू प्ले फुटबॉल। थर्ड एग्जांपल इज वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस पॉजिटिव सेंटेंस विल बी डू वी प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन गए। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस। द interrogations are interrogative sentence when we have to use third person singulars. He plays football, हेल्पिंग वर्ब डज इसमें यूज होगा क्योंकि ही, शी, इट, सैम, अगेन वही बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। डज ही प्ले फुटबॉल, तो क्या वो फुटबॉल खेलता है, तो डज इसका हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना है स्टार्टिंग में। शी प्लेज फुटबॉल, डज शी प्ले फुटबॉल। इट प्लेज फुटबॉल, डज इट प्ले फुटबॉल। सैम प्लेज फुटबॉल, डज सैम प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।